دوسرے بیمار دوست کولنز کو نہ صرف صحت مند کیا بلکہ خود بھی اچھی بچی بن گئی۔ جب میری لینکس کو اپنے انکل کے پاس میسلت ویٹ مینر رہنے کے لیے بھیجا گیا تو جس نے بھی اس بچی کو دیکھا تو کہا، اوہو کیسی عجیب بچی ہے، بدصورت بچی۔ یہ سچ بھی تھا، چھوٹا سا منہ، کمزور جسم، چہرے پر غصہ اور ناراضگی۔ وہ انڈیا میں پیدا ہوئی تھی اور ہمیشہ بیمار ہی رہی، اسی لیے دوسرے بچوں سے مختلف تھی۔ اس کے ابو انگریز تھے مگر انڈیا میں نوکری کرتے اور خود بھی ہمیشہ بیمار ہی رہتے۔ اس کی ماں بہت ہی خوبصورت تھی مگر پارٹیوں میں شرکت کرنے کے علاوہ اسے کوئی چیز پسند نہ تھی۔ میری کا اسے بالکل خیال نہ تھا، اسی لیے نوکرانی آیا کی ذمہ داری تھی کہ میری کی دیکھ بھال کرے۔ آیا کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اگر میم صاحبہ کو خوش رکھنا ہے تو ننھی بچی کو ان کی نظروں سے دور رکھنا ہوگا۔ چنانچہ ہمیشہ اس بدصورت بیمار بچی کو اس کی ماں سے دور ہی رکھا جاتا۔ جو لوگ میری کے قریب تھے وہ اس کے انڈین نوکر تھے جو اس کی ہر بات مانتے کہ اگر وہ ناراض ہو کر روئے گی، چیخیں مارے گی تو میم صاحبہ ناراض ہوں گی۔ ہر بات منوانے کی وجہ سے وہ صرف 6 برس کی عمر میں ہی بہت ضدی ہو چکی تھی۔ انگریز ٹیچر جو اسے پڑھانے آئی مگر ناپسندیدگی اس قدر بڑھی کہ 3 ماہ میں وہ پڑھانا چھوڑ گئی۔ دوسری ٹیچر آئی مگر تھوڑی ہی دیر بعد میری کے پاس سے چلی جاتی۔ اسے اس کی مرضی کے خلاف بھلا کون مجبور کر سکتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے۔ 9 سال کی عمر میں ایک صبح وہ اٹھی تو بہت چڑچڑا پن محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے یہ کیا، اس کی آیا کے بجائے کوئی اور موجود تھا۔ تم کون ہو، یہاں کیوں آئی ہو، آیا کو بھجواؤ۔ وہ گھبرائی ہوئی بولی کہ آیا نہیں آ سکتی۔ میری نے اسے مارا تو وہ اور خوفزدہ ہوئی۔ اس کی حالت ایسی نہیں کہ آ سکے مسی صاحب۔ کچھ ملازم نظر ہی نہ آتے تھے، کچھ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ کسی نے میری کو کچھ بتایا نہیں اور آیا غائب تھی۔ بالآخر وہ خود ہی باہر باغ میں آئی اور اکیلے کھیلنے لگی۔ پھولوں کا بستر بناتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ غصے میں آ رہی تھی، اتنے غصے میں کہ سب سے بری بات جو کہی جا سکتی تھی اپنی آیا کو کہہ رہی تھی، پگ پگ ڈاٹر آف پگس۔ اسی دوران اس نے اپنی امی کی آواز سنی۔ ماں کے ساتھ بہت چھوٹی عمر کا انگریز آفیسر تھا جو کچھ دن پہلے ہی انگلینڈ سے آیا تھا، مگر وہ دونوں کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ میری نے اپنی خوبصورت امی کو دیکھا جو آج خوش نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ماں بولی، کیا یہ واقعی بہت خطرناک ہے؟ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک۔ آپ کو تو 2 ہفتے پہلے پہاڑی علاقے میں چلے جانا چاہیے تھا۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں کہ پارٹیوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے گھر نہ چھوڑا۔ اسی وقت ملازموں کے کوارٹر سے رونے کی بلند آوازیں آنے لگی۔ آپ کے ملازموں میں کوئی مر گیا ہے؟ آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ یہاں بھی بیماری پہنچ چکی ہے۔ مجھے تو علم ہی نہ تھا۔ اندر چلیں اندر چلیں۔ وہ گھر میں بھاگ گئے۔ ہیضے کی بیماری نے دوسرے دن تک 3 اور ملازموں کی جان لے لی۔ ہر طرف لوگ مر رہے تھے اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ میری کی طرف کسی کی توجہ نہ گئی، کسی کو اس سے محبت بھی نہ تھی کہ اس کے بارے میں سوچتا۔ اسے بھی بس اتنا معلوم تھا کہ بیماری کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ کھانے کی میز پر اسے ایسا معلوم ہوا کہ گھبراہٹ میں میز صاف کی گئی ہے۔ اس نے بسکٹ کھا کر پیاس محسوس کی، پانی پیا اور جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ اس کی گہری نیند کے دوران گھر میں بہت کچھ ہو گیا مگر اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جاگنے پر اس نے پہلی مرتبہ گھر میں اتنی خاموشی محسوس کی۔ کیا بیماری جا چکی ہے اور سب ٹھیک ہو چکے ہیں؟ مگر میری آیا تو مر گئی ہے، میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہاں نئی آیا آئے گی۔ پرانی آیا کی تو سب کہانیاں بور ہو چکی تھی، نئی آیا شاید نئی کہانیاں سنائے۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ آیا مر گئی ہے۔ غصہ تو اسے اس بات کا تھا کہ کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہ دیا، مگر جب سب کو اپنی جان بچانے کی فکر ہو تو دوسروں کی طرف کون دھیان دیتا ہے؟ ہاں ایک چھوٹا سا سانپ اسے ضرور نظر آیا جو چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر یہ نقصان پہنچانے والا نہ تھا۔ میری باہر آئی جہاں مکمل خاموشی تھی، پھر ہلکے ہلکے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، سنا ہے یہاں ایک بچی بھی تھی مگر اسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ باتیں کرنے والا آفیسر تھا جس سے میری نظر آئی۔ اوف میرے خدا، ایسی اکیلی جگہ پر بچی، یہ کون ہے؟ میں سو رہی تھی مگر سب لوگ کہاں ہیں؟ ہاں کسی نے اس کے بارے میں نہ سوچا۔ میری نے غصے میں کہا، کیوں میرے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوئی بھی باقی نہیں جو آئے۔ اب میری کی سمجھ میں آیا کہ اس کے ابو امی اب اس دنیا میں نہیں، اور زندہ بچنے والے ملازم وہاں سے بھاگ گئے، اور مسی صاحب کے بارے میں کسی نے بھی کچھ نہ سوچا، اسی لیے گھر میں اتنی خاموشی تھی۔
मैरी ने कभी अपनी अम्मी को करीब से देखा ही नहीं था, मोहब्बत कैसे करती। इसीलिए कोई परवाह न की, बल्कि सिर्फ अपने बारे में सोचा। शायद वो बड़ी होती तो उन हालात का ज्यादा असर लेती, मगर इस वक्त उसने ज्यादा परवाह ना की। उसका ख्याल था कि जैसे उसकी पहले देखभाल की जाती थी अब भी वैसा ही होगा। क्या मैं अब भी ऐसे लोगों के साथ रहूंगी जो मेरा आया की तरह ख्याल रखेंगे? उसे अब उस पादरी के घर रहना था जहां वो रहना नहीं चाहती थी। गरीब इंसान जिसके 5 बच्चे थे, वो हमेशा खिलौनों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते। मैरी उनसे अलहदा रहती, मगर फिर एक शरारती बच्चा जिसका नाम बैजल था मैरी से नाराज हुआ और उसे चिढ़ाने के लिए उसका मजाक उड़ाने लगा। मैरी बाग में अकेले खेल रही थी और मिट्टी से घर बना रही थी। बैजल आया और उसे मशवरे देने लगा, ऐसा कर लो। मैरी जो उससे नफरत करती थी चीखी, यहाँ से चले जाओ, मैं लड़कों के साथ खेलना पसंद नहीं करती। बैजल गुस्से में बोला, मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कंट्रेरी। वो नाच रहा था और सबको सुना रहा था। मैरी जितने गुस्से में आती वो सब उतना ही और ज्यादा उसे चिढ़ाते और फिर उसे इसी नाम से बुलाते। फिर बैजल ने दूसरे हफ्ते में मैरी से कहा, शुक्र है हमारी जान छूटी, तुम यहाँ से चली जाओगी। मैं तो खुद भी यही चाहती थी, मैरी बोली। तुम इंग्लैंड जाओगी, अपने अंकल के पास, मिस्टर आर्चिबाल्ड क्रेवन के पास। वो बहुत बड़े मगर सुनसान घर में रहते हैं। सब उससे दूर रहना पसंद करते हैं। चिड़चिड़ा, गुस्से वाला इंसान, कुबड़ा, बदसूरत। तुम झूठे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैरी ने उंगलियां डालकर कान बंद कर लिए, मगर ये सच था कि वो वहां से जा रही थी। पादरी और उसकी बीवी ने मैरी को प्यार करने की कोशिश की, मगर उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो जानते थे कि माँ बाप के तवज्जो ना देने की वजह से वो इस तरह की हो गई है। और फिर मैरी इंग्लैंड पहुंच गई, जहां घर की देखभाल करने वाली मिसेस मैडलॉक उसे लेने आई थी। मैरी जो किसी भी शख्स को पसंद ना करती थी, उसने इस औरत को भी नापसंद किया। मिसेस मैडलॉक बोली, सुना था इसकी माँ बहुत ही खूबसूरत थी, मगर ये कैसी बच्ची है? शायद बड़े होकर खूबसूरत हो जाए। क्योंकि ये गुस्से में रहती है, इसीलिए अच्छे नपूश के बावजूद बदसूरत नजर आती है। अगरचे मैरी खिड़की से बाहर गुजरते हुए लोगों और गाड़ियों को देख रही थी, मगर वो तमाम बातें ध्यान से सुन रही थी। वो अपने अंकल और उस जगह के बारे में सोच रही थी। कुबड़ा क्या होता है? खैर कोई परवाह नहीं, सब बच्चों के माँ बाप होते हैं। मुझे तो पहले भी यही लगता था कि मेरे माँ बाप नहीं है। उन्होंने कभी मुझसे बात ही नहीं की थी। उसे मालूम ही न था कि असल में लोग उससे मोहब्बत नहीं करते। मगर इस वक्त मिसेस मैडलॉक उसे दुनिया की सबसे बुरी औरत लग रही थी। उन दोनों ने मीसलेथवेट मैनर की जानिब सफर शुरू किया। मिसेस मैडलॉक अपने काम से काम रखने वाली और मिस्टर आर्चिबाल्ड क्रेवन के हर हुक्म की तामील करने वाली औरत थी, जिसने उससे कहा, कैप्टन लेनक्स और उसकी बीवी इंडिया में मर गए हैं। कैप्टन लेनक्स मेरी बीवी का भाई था और अब मैं उसकी बेटी की देखभाल करूंगा। लंदन जाओ और उसे यहाँ ले आओ। मैरी खामोशी से बैठी रेल का सफर कर रही थी। मिसेस मैडलॉक ने सोचा, ऐसी बच्ची तो जिंदगी में पहली मर्तबा ही देखी है। दरअसल पहली मर्तबा उसे ऐसी बच्ची नजर आई थी जो इतनी खामोशी से बैठे और किसी किस्म की हरकत ना करे। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल है मुझे उस बारे में कुछ बताना चाहिए जहाँ आप जा रही हैं। वो सुनसान इलाका है, घर 600 साल पुराना है, जो दलदली इलाके के साथ वाक़ा है। 100 के करीब वहाँ कमरे हैं, मगर ज्यादातर बंद रहते हैं। सदियों पुरानी तस्वीरें और सामान वहाँ है, बेशुमार बाग, दरख्त और बस। मैरी सोच रही थी, इंडिया में तो कोई ऐसी दिलचस्प जगह ना थी। खैर, क्या तुम्हें पसंद आया? पता नहीं, जैसा भी है मुझसे क्या मतलब। और आपके अंकल अकेले रहने के आदी हैं और दूसरों की मुदाखलत पसंद नहीं करते। उनकी कमर में तकलीफ है। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। वो बहुत ही खूबसूरत थी, मगर वो मर गई। मैरी अचानक खड़ी हो गई। ओह, तो वो मर चुकी हैं। मैरी ने एक कुबड़े आदमी और परी की कहानी याद की, जिसकी वजह से अंकल के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा हुए। हाँ, वो मर चुकी हैं, इसीलिए अब वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते और अकेले ही रहते हैं, या फिर लंबे अरसे के लिए कहीं और चले जाते हैं। और जब यहाँ होते हैं तो पिक्चर के अलावा किसी और को उनसे मिलने की इजाजत नहीं। ये बचपन से ही उनका ख्याल रखता है। मैरी सोच रही थी, दलदल के करीब 100 बंद कमरों का घर, जहाँ कुबड़े अंकल रहते हैं जो किसी से मिलते नहीं। कैसी पुरस्कार चीजें हैं। हाँ, अगर अंकल की बीवी जिंदा होती तो मेरी अम्मी की तरह पार्टियों में जाती और अंकल भी खुश होते, मगर अब वो वहाँ नहीं है। मैरी को मजीद बताया गया कि वहाँ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं, अकेले ही खेलोगी और अपना ख्याल खुद रखोगी। बता दिया जाएगा कि किस कमरे में जाना है और किस में नहीं। मैरी जहाँ पहले अंकल के लिए हमदर्दी महसूस कर रही थी, अब सोचने लगी, अच्छा है, ऐसे आदमी को तकलीफ ही होनी चाहिए।
इन्हीं सोचों के दौरान वो सो गई। घर पहुंचने पर मार्था नामी मुलाजमा ने उससे अच्छे तरीके से बातचीत की। हमारा छोटा सा घर है, अगरचे कमाई बहुत कम है, मगर हम 12 लोग बहुत खुश एक साथ रहते हैं। डिकिन से आप मिलेंगी, वो 12 साल का है, उसके बहुत से परिंदे और जानवर दोस्त हैं। यहाँ बहुत से खूबसूरत बाग हैं, आप उन्हें जरूर देखें। और हाँ, एक बाग खुफिया है, 10 साल से बंद है। वो बंद है, मगर क्यों? इसलिए कि वो साहब और बेगम साहिबा का बाग था। बेगम साहिबा के मरने के बाद साहब ने उसे बंद कर दिया। वहाँ ताला लगा हुआ है और चाबी छुपा दी गई है। आजकल तो सर्दियाँ हैं, मगर बहार में शानदार फूल खिलते हैं। मैरी की ताज़ा हवा और बाग में सैर से सेहत अच्छी हो रही थी। उसे ये भी मालूम हो गया कि उसके अंकल अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे और दोनों बाग की देखभाल करते। मगर एक दिन बाग के एक दरख्त की शाख जिस पर उनकी बीवी बैठी थी टूटी, जिससे मौत वाक़ा हुई। इसी वजह से उन्होंने बाग के उस हिस्से को हमेशा हमेशा के लिए बंद ही कर दिया। ओहो, कितने अफसोस की बात है। एक रात सख्त तूफान के दौरान मैरी को एक लड़के के रोने की आवाज़ आई। मैरी चुपके से बाहर निकली और जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ गई, मगर मैडलॉक की वजह से अपने कमरे में वापस आना पड़ा। एक रोज बाग में सैर के दौरान मैरी ने 2 चीजें दरियाफ्त की, एक खूबसूरत परिंदा और एक बाग जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता ना था। जब माली को उसने ये बात बताई तो वो मुस्कुराया, सीटी बजाई और वो खूबसूरत परिंदा वहाँ मौजूद था। बेन वेदरस्टाफ, जो पहले गुस्से में था, हंस रहा था। परिंदा मैरी का दोस्त बन चुका था। बाहर आने वाली थी और माली नए पौधे लगा रहा था। मैरी को एक चाबी मिली, शायद ये खुफिया बाग की चाबी हो। मैरी ने अपने पास रख ली। कुछ दिनों के बाद तेज हवा चली, बाग की एक दीवार से पत्ते उड़े और ये क्या, एक दरवाजा उसके सामने था। जो चाबी उसे मिली थी, मैरी ने वो उस दरवाजे पर लगाई और बहुत अरसा इस्तेमाल ना होने के बावजूद दरवाजा खुल गया। मैरी अंदर दाखिल हुई। कितना खूबसूरत बाग था, शानदार। मैरी ने उस जगह रोजाना जाना शुरू किया, मगर माली बैन से छुप कर वो जाती और नए पौधे उगाती। मगर वो माली को पसंद भी करती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसे हर फूल के बारे में मालूमात है। खुफिया बाग का एक दरवाजा दूसरी जानिब जंगल में खुलता था। मैरी ने सोचा जंगल में जाकर देखते हैं कि वहाँ खरगोश भी हैं या नहीं। मगर ये क्या, वहाँ तो बांसुरी की आवाज आ रही थी। 12 साल का लड़का बैठा बांसुरी बजा रहा था, साफ सुथरा नीली आंखों वाला लड़का। उसके करीब 2 खरगोश ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें मौसीकी पसंद आ रही हो। जब लड़के ने मैरी को देखा तो बहुत हल्की आवाज में कहा, आपकी हरकत करने से ये भाग जाएंगे। लड़का आहिस्तगी से उठा और बोला, मैं डिकिन हूँ और आप मिस मैरी हैं। वो हंसते हुए ऐसी बातें कर रहा था जैसे मैरी को अरसे से जानता हो। मुझे मार्था ने कहा था तो मैं पौधे लगाने का सामान ले आया हूँ, कुदाल, बेलचा और दूसरा सामान बीच में लाया हूँ। डिकिन का बात करने का अंदाज मुख्तलिफ था। मैरी सोच रही थी काश मैं भी इस लहजे में बात कर सकती। डिकिन ने जेब से पैकेट निकाला जिसमें से बहुत से पैकेट निकले जिनमें मुख्तलिफ फूलों की तस्वीरें बनी हुई थी और वही बीज उनमें थे। खूबसूरत परिंदा गाने गाता हुआ उनके करीब मौजूद था। डिकिन ने उसी के अंदाज में सीटी बजाई। परिंदे ने जवाब दिया, ओहो मिस मैरी, ये तो आपको बहुत पसंद करता है, आपका दोस्त बन चुका है। क्या ये परिंदा जो कहता है आपको सारी बातें समझ आती हैं? डिकिन ने सर खुजाते हुए कहा, हाँ मेरा ख्याल है मैं समझ जाता हूँ, मैं शुरू से ही उनके साथ रह रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं भी उन जैसी ही एक चीज हूँ, एक परिंदा, गुलहरी या फिर लोमड़ी। उसने कहकहा लगाया और दोबारा फूलों की बातें शुरू की। किस तरह इन फूलों के बीजों को उगाया जाता है, किस तरह देखभाल की जाती है और किस तरह पानी दिया जाता है। खैर मैं आपके लिए यह खुद उगा सकता हूँ, आप मुझे अपना बाग दिखाएं। क्या आपको बाग का कोई हिस्सा दिया गया है? www.server555.com server 555.com audio production The Secret Garden by Francis Hodgson Burnett तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली पार्ट 2। हाँ मेरे पास एक बाग है, मगर खुफिया बाग, सीक्रेट गार्डन। अगर तुम वादा करो कि किसी को ना बताओगे तो मैं बताती हूँ कि वो कहाँ है। फिर दोनों खुफिया बाग में गए। डिकिन उसे देखकर हैरान था। मैंने इसके बारे में सुना था मगर देखा पहली मर्तबा है। उन्होंने बाग की सफाई की। डिकिन और मैरी वहाँ बहुत खुश थे। वापसी पर मैरी को मुलाजमा मार्था ने बताया कि उसके अंकल क्रेवेंस उससे मिलना चाहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए घर आए हैं और कल चले जाएंगे। मैरी अपने उदास अंकल क्रेवेंस से मिली और उन्हें कहा कि अगर बाग का एक हिस्सा उसे मिल जाए तो ताज़ा हवा में उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। हाँ हाँ, जहाँ दिल चाहे खेलो, जो हिस्सा चाहे लो।
शुक्रिया, मैं पौधे उगाऊंगी और सेहतमंद हो जाऊंगी। अंकल अपनी बीवी को याद कर रहे थे जो खुद भी पौधों को पसंद करती थी। मैरी ने अंकल को पसंद किया। अब वो डिकिन के साथ खुफिया बाग में वक्त गुजार सकती थी, जबकि मिसेस मेडलॉक को खुशी थी कि अब उसकी इस बच्ची की देखभाल से जान छूट जाएगी। वो बाग में गई जहाँ डिकिन मौजूद न था, मगर एक तस्वीर वहाँ मौजूद थी जिसमें परिंदा अपने घोंसले में बैठा था और नीचे डिकिन ने लिखा था, मैं जल्द वापस आऊंगा। घर में मार्था को यह तस्वीर दिखाई, वो खुश हुई। शानदार, डिकिन कितना ज़हीन है। मैरी समझ गई कि डिकिन का मतलब है कि ये बाग हमारा घोंसला है, घर है जहाँ हम खुश खुश रहते हैं और ये राज किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, वो कल आ जाएगा। रात को शदीद बारिश की आवाज़ से उसकी आंख खुली। शदीद तूफान था। मैरी को ये बारिश बहुत बुरी लगी। कितनी बुरी आवाज़ें आ रही थी हवाओं और बारिश की, जैसे कोई आदमी सुनसान दलदली इलाकों में गुम हो गया हो, उसे रास्ता ना मिल रहा हो और वो रो रहा हो। मगर ये क्या, ये तो मुख्तलिफ आवाज़ है, ये बारिश की आवाज़ नहीं है। मैरी कमरे से बाहर आई और रोने की आवाज़ की तरफ जाने लगी। वो बहादुर बन गई थी। मैं आज देखूंगी कि ये कौन रोता है। मोमबत्ती पकड़े वो रोने की उस आवाज़ की तरफ जा रही थी। कितनी जोर से उसका दिल धड़क रहा था। कोई बच्चा रो रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई। हाँ, वाकई एक बच्चा बिस्तर पर लेटा रो रहा था। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? नहीं, ये वाकई रो रहा है। वो बीमार लगता था। उस बच्चे ने मैरी को देखा और हैरान हुआ। कौन हो तुम? क्या भूत हो? नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। इस बच्चे की आंखें कितनी बड़ी थी। मैं कॉलिंस हूँ और मैं मैरी हूँ। क्रेविंस मेरे अंकल हैं। वो तो मेरे अब्बू हैं। बच्चे ने मैरी को छुआ। हाँ, मैं ख्वाब नहीं देख रहा, तुम वाकई यहाँ हो। तुम कहाँ से आई हो? बारिश में तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनी। क्यों रो रहे हो? मेरे सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही। मैं बीमार रहता हूँ, इसलिए लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं, मुलाजमों को भी मेरे बारे में बताने की इजाज़त नहीं। मैरी बोली, कितना पुरस्कार घर है ये। कमरों में ताले लगे हुए हैं, बाग में भी ताला है। क्या आप भी ताले में रहते हैं? नहीं, मगर मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। कभी कभी अब्बू आते हैं, मगर वो मुझे नहीं देखना चाहते। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी मर गईं, इसलिए अब्बू मुझे पसंद नहीं करते। कभी कभी मैं समंदर के किनारे भी जाता हूँ, मगर लोग मुझे हैरान होकर देखते हैं। ये देखो, मेरी कमर कमजोर है, इसलिए मुझे तो अभी लग रहा है कि मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ। आधी रात है, सब सो रहे हैं, सिर्फ हम जाग रहे हैं। मैरी बोली, अगर तुम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते तो क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं नहीं, तुम अच्छी बच्ची हो, मेरे पास बैठो और बातें करो। दोनों देर तक बातें करते रहे। मैरी ने इंडिया के बारे में बताया, अपने समंदर के सफर के बारे में बताया। कॉलिंस ने बताया कि जो मैं कहता हूँ सब मुलाजिम वही करते हैं, जिसे मैं मना कर देता हूँ वो मना हो जाती है। और हाँ, सबका ख्याल है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ये बात उसने ऐसे कही जैसे इसका आदी हो चुका हो। वो दिलचस्पी से मैरी की बातें सुनता रहा। मैं 10 साल की हूँ, तुम भी 10 साल के हो। कैसे पता चला? क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो बाग को ताला लगाकर चाबी छुपा दी गई थी और इस बात को 10 साल हो चुके हैं। कॉलिंस बैठ गया। कौन सा बाग? मुझे बताओ। वो बाग जिसे मिस्टर क्रेविंस पसंद नहीं करते। मगर अब कॉलिंस उसके बारे में सवाल पूछ रहा था। मैं मुलाजमों से पूछूंगा, वो जरूर जवाब देंगे। यहाँ की हर चीज मेरी है। मैरी की ख्वाहिश थी कि वो ऐसा ना करे। मेरे डॉक्टर मेरे अबू के गरीब रिश्तेदार हैं। मेरे मरने के बाद ये जायदाद उनकी हो जाएगी, तो वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, मगर मैं मरना नहीं चाहता। मगर हाँ, रोता जरूर हूँ, मैं अकेला होता हूँ ना, इसलिए। मगर फिर दोबारा वो खुफिया बाग के बारे में बातें करने लगा। मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और खुली हवा में मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। तुम्हें भी वहाँ आने की इजाजत होगी। मैरी ने कहा, तुम मुलाजमों से कोई बात नहीं करोगे। इस तरह ये बात खुफिया नहीं रहेगी। हमें चाबी तलाश करनी चाहिए, सिर्फ हमें इस बारे में इल्म होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, वो खुफिया बाग हमारा होगा, सिर्फ हमारा। और हाँ, एक लड़का भी होना चाहिए डिकिन की तरह का, जो तुम्हें कुर्सी में बिठाकर वहाँ ले जाए। तुम बहुत अच्छी हो, रोजाना मेरे पास आओ। वो सो गया। वो दोनों फिर मिले, मगर किसी को इस बात का ना बताया। मगर फिर लोगों को इस बात का पता चल गया। डॉक्टर नाराज हुआ, मगर कॉलिंस ने कहा कि वो जिससे चाहेगा मिलेगा। फिर 1 हफ्ते तक बारिशें होती रही, इसलिए मैरी बाग में ना जा सकी। मगर कॉलिंस से मिलती और वो बातें करती। 1 हफ्ते बाद सूरज निकला। वो खुफिया बाग में गई, जहाँ डिकिन अपने दोस्त जानवर और परिंदों के साथ मौजूद था। रॉबिन अपना घोंसला बना रहा था। नए पौधे उग रहे थे। डिकिन, हमें कॉलिंस की मदद करनी है। वो कमजोर कमर की वजह से बीमार है। अगर वो यहाँ आए तो सेहतमंद हो जाएगा। मगर घर में मैरी के ना आने की वजह से कॉलिंस ने सब मुलाजमों पर बेहद गुस्सा किया। मैरी उससे मिलने गई, मगर उसने गुस्से में बात ना की। फिर गुस्से से बोला कि वो पहले मिलने क्यों नहीं आई। उसने मैरी और डिकिन पर गुस्सा किया तो उन दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को सुनाया।
میری نے ڈکن کی تعریف کی تو کالنز نے اس کا مذاق اڑایا، مگر پھر زور زور سے رونے لگا کہ وہ بیمار ہے اور مر جائے گا۔ نہیں، تم نہیں مرو گے، تم صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے ہو۔ باہر چلی جاؤ، ٹھیک ہے، اور اب میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس کو اکیلے رہ کر مرنا چاہیے، کتنا بدتمیز ہے۔ اب اس کو میں خفیہ باغ کا بھی نہیں بتاؤں گی، مگر نہیں، وہ بیمار ہے، میں اسے ملنے جاؤں گی۔ رات کو کالنز زور زور سے رو رہا تھا اور ملازم پریشان تھے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ میری گئی اور غصے میں کہا کہ رونا بند کرو، کیا بچوں کی طرح روئے جا رہے ہو؟ وہ رو رہا تھا۔ پھر میری نے اس کی کمر کا جائزہ لیا غور سے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل میری طرح ہے۔ کالنز کا ڈر دور ہو چکا تھا، وہ چپ ہو گیا۔ ہاں، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم باغ میں جائیں تو میں بچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم جائیں گے، وہاں بہت سے پرندے ہیں، پھول ہیں۔ دوسرے دن ڈکنز سے میری نے کہا کہ کالنز کو یہاں لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہیں گی لے آئیں گے۔ کالنز نے بھی ملازموں کو منع کر دیا کہ کوئی خفیہ باغ کی جگہ کی طرف نہ جائے۔ میری اور ڈکن کے ساتھ کالنز ویل چیئر پر بیٹھ کر خفیہ باغ میں آیا۔ وہ بہت عرصے بعد تازہ ہوا میں آیا اور خوشی محسوس کی۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے، تتلیاں، پرندے۔ ہاں، میں اب زندہ رہوں گا، میں صحت مند ہو رہا ہوں۔ وہ ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ ہاں، میں اب یہاں روز آؤں گا، کالنز بولا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، پودے اگاؤں گا، میں اب اپنے پیروں پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ مالی وہاں آ گیا، وہ غصے میں تھا، مگر کالنز کو دیکھ کر وہ غصے کے باوجود کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ باغ کا مالک وہاں موجود تھا۔ وہ حیران تھا کہ بچہ تو بیمار تھا، یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کالنز نے ہمت کی اور جوش میں ویل چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ کالنز نے مالی کو حکم دیا کہ باغ میں اچھے پودے لگا کر شاندار بنا دیا جائے۔ مالی بھی اب ان کے راز میں شریک تھا۔ ان کے خیال میں باغ جادو کا تھا، جس سے کالنز صحت مند ہو سکتا تھا۔ شاندار سورج، خوبصورت پودے اور پرندے، وہ جادو تھا جس سے وہ واقعی صحت مند ہو رہا تھا۔ پھر کالنز چلنے پھرنے لگا، مگر یہ بات کسی کو نہ بتائی کہ وہ چل سکتا ہے۔ ڈکن کی ماں باغ میں آئی اور کالنز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کالنز نے اسے کہا کہ آپ مجھے اپنی ماں کی طرح لگتی ہیں۔ ہاں، تم بھی مجھے اپنے بیٹے کی طرح لگتے ہو۔ کالنز کے ابو اپنے دکھوں کو بھلانے کے لیے مختلف ممالک میں گھومتے اور ہمیشہ اداس رہتے۔ ایک علاقہ انہیں بہت اچھا لگا۔ دنیا کتنی خوبصورت ہے، انہوں نے خوشی محسوس کی۔ اسی طرح کالنز بھی اب زندہ رہنے کے بارے میں سوچتا۔ بہت دور اس کے ابو ایک دن اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اسی وقت انہیں اپنی بیوی کی آواز آئی کہ میں آپ کا سیکرٹ گارڈن میں انتظار کر رہی ہوں۔ دوسری صبح انہیں گھر سے بھی خط ملا کہ وہ گھر آ جائیں۔ ہاں، میں گھر جاؤں گا، ابھی۔ گھر کا سفر شروع کیا۔ گھر میں سب حیران تھے۔ کالنز جو پہلے کھلی ہوا میں جاتا ہی نہ تھا، اب وہاں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ کبھی کھانا کھاتا ہی نہ تھا، اب بہت اچھا کھانا کھاتا ہے۔ صحت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ جو کبھی مسکراتا نہیں تھا، اب ہنستا ہے۔ خیر، اب وہ کہاں ہے؟ باغ میں، وہاں ہی زیادہ وقت گزارتا ہے۔ باغ میں کریون نے کئی بار یہ الفاظ دہرائے۔ وہ خود بھی باغ کی طرف گئے۔ آہستہ آہستہ ان کے قدم اٹھ رہے تھے۔ کتنے عرصے بعد وہ یہاں آئے تھے۔ میں نے چابی کہاں چھپائی تھی معلوم نہیں، مگر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ 10 سال سے جہاں کوئی داخل نہیں ہوا تھا، وہاں سے آوازیں کیسے آ سکتی تھی؟ کبھی آہستہ، کبھی بچوں کے ہنسنے کی۔ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ پھر بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ ہنستا ہوا ایک بچہ باہر نکلا اور ان کے بازوؤں میں آ گیا۔ یہ کیا زندگی سے بھرپور صحت مند بچہ کالنز تھا۔ کالنز بھی حیران تھا کہ اس طرح جب بھاگنے میں جیت جائے گا تو ابو جان اسے سامنے کھڑے ملیں گے۔ ابو جان، میں کالنز ہوں، یقین کریں، یہ میں ہی ہوں۔ باپ نے کالنز کی ماں کی آواز سنی تھی، ان دا گارڈن، باغ میں، اور کالنز بھی کہہ رہا تھا کہ باغ نے اسے صحت عطا کی اور اب وہ دوڑنے میں جیت رہا تھا۔ باپ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابو جان، اب میں زندہ رہوں گا۔ ابو جان، آپ خوش ہیں نا؟ ہاں بیٹا، مجھے باغ میں لے کر چلو اور سب کچھ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ باغ میں ہر طرف رنگ برنگے شاندار پھول کھلے ہوئے تھے۔ ابو جان یاد کر رہے تھے کہ انہوں نے کئی سال پہلے انہیں اگایا تھا۔ سب حیران پریشان کھڑے تھے۔ ابو جان نے کہا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اجاڑ بن چکا ہوگا، ہم بھی پہلے یہی سمجھے تھے۔ کالنز نے ساری کہانی سنائی، دنیا کی سب سے دلچسپ کہانی، حیرت انگیز پراسرار جادوئی چیزیں، جانور، رات کے سنسان ماحول میں ملاقاتیں، بہار کی آمد، غرور کا ٹوٹنا، دوستیاں، ناراضگیاں، سیکرٹ گارڈن کا راز سب سے چھپانا۔ سب اتنا ہنسے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو کبھی خوشی کے اور کبھی یادوں کے آنسو تھے۔ آخر میں اس نے کہا، یہ اب راز کی بات نہیں رہی تو اب میں ویل چیئر پر نہیں بلکہ ابو جان آپ کے ساتھ اپنے قدموں پر چل کر جاؤں گا۔ گھر کے سب ملازموں کی دعوت کی گئی۔ کھڑکی کے باہر جب انہوں نے گھر کے مالک اور ان کے بیٹے کو صحت مند اور ہنستے ہوئے دیکھا تو نہ